آپ تو برملا کہتے ہیں کہ کوئی ڈیل نہیں، لوگ شک کرتے ہیں کہ ڈیل ہے. کیوں؟ اس لیے کہ آپ گو نواز گو نہیں کہتے، آپ ان کے خلاف دھرنا نہیں دیتے، آپ ان کے خلاف احتجاجی تحریک نہیں چلاتے. گو نواز گو تو اب اپنے جلسوں میں ہم ضرور کہیں گے. کب سے کہیں گے؟ اب انشاءاللہ ذری جلدی میرا ایک پہلا جلسہ ہے، اس میں کہیں گے. سو اگلے جلسے میں گو نواز گو کے نعرے لگیں گے انشاءاللہ. مگر دھرنے ہم نہیں دیتے، اس لیے کہ ہم ان کو پولیٹیکل ڈیفیٹ دینا چاہتے ہیں. آپ سمجھتے ہیں دھرنے سے سیاسی شکست نہیں ہوتی؟ کیا ہوتا ہے؟ نہیں، دھرنوں سے اس کا مطلب ہے کہ کل کو اگر سمیع الحق 2 لاکھ آدمی لے آئے اسلام آباد میں تو میں ایکسیپٹ کر لوں. بہت سی پارٹیز ہیں جو کہ موبلائزیشن کر سکتے ہیں یا مل کے موبلائز کر سکتے ہیں، تو آئی ڈو ناٹ ایکسیپٹ دیٹ. بیرون ملک جانے سے پہلے بڑی زوردار تقریر کی، ایسے لگا کہ اسٹیبلشمنٹ سے شدید لڑائی ہو گئی ہے، لیکن پھر آپ نے اس کو اوائڈ کیا، لڑائی سے بچ کے باہر ہی رہے جب تک کہ وہ اسٹیبلشمنٹ چلی نہیں گئی. کیا واقعی ایسا تھا؟ دیکھیں، اسٹیبلشمنٹ کو میں نے تنبیہ کی اور وہ ہوا کہ بھئی آپ نے 3 سال کے لیے آنا ہے پھر جانا ہے، تو کیوں آپ ایسے انکانسٹیٹیوشنل سٹیپس لیتے ہیں؟ تو بیسیکلی آپ کا مخاطب اس وقت کی ایک اسٹیبلشمنٹ جنرل کانسیپٹ کہ بھئی آپ نے ہر کوئی اپنے کانسٹیٹیوشنل ایمبٹ میں رہے، آئینی حدود کے اندر. آئینی حدود ہے. لڑائی جب شدت کو پہنچی تو آپ باہر چلے گئے. شدت کو کیا پہنچے؟ آپ نے بیان دیا، ایسے لگا کہ بس اب سب کچھ پلٹنے والا ہے. کیا پلٹتا؟ میں نے تو میاں صاحب کو تھکا کے ہرانا ہے. آپ سمجھتے ہیں میں میاں کو نکال کے اس کو بناؤں، ہیرو بناؤں؟ وہ میں نے بنانا نہیں ہے. تو آپ انہیں تھکا رہے تھے باہر بیٹھ کر. باہر بیٹھ کے ویکیوم کریٹ ہوتا ہے، اس ویکیوم میں دوسری فورسز آگے آتی ہیں. تو اس کا مطلب ہے عمران خان کو آپ نے آگے لانے میں مدد کی. فورسز، میں نے عمران خان کا نام تو نہیں لیا. باقی فورسز آگے آتی ہیں، پھر وہ اس میں مشغول ہو جاتے ہیں کہ ان فورسز سے لڑتے رہتے ہیں، خود تھکتے ہیں، پھر آ کے ہم نے پھر جنگ کرنی ہے. تو آپ نے انہیں تھکا دیا. میں سمجھتا ہوں کافی تھک چکے ہیں، اب اور تھکانا ہے. آپ سے کوئی رابطہ نہیں ہوا میاں نواز شریف کا؟ کوئی نامہ پیغام، کوئی رابطہ؟ میاں صاحب کی عادت نہیں ہے، جب تک مشکل میں نہیں آتے تو رابطہ نہیں کرتے. آپ نے کوئی پیغام بھیجا؟ نہیں. آپ بھی بس چاہتے ہیں آپ سیاسی میدان میں جنگ؟ سیاسی میدان کوئی مذاکرات نہیں؟ کس بات کے مذاکرات؟ اچھا الیکشن کروانے کے مذاکرات. وہ تو پارلیمنٹ میں کمیٹی ہے، وہ کر رہی ہے. لیکن ایک اچھی فضا تو پیدا ہو سکتی ہے ملاقات میں. ملاقات میں اچھی فضا ان کے لیے پیدا ہو سکتی ہے، میرے لیے تو نہیں. میرے لیے تو پھر آپ کہیں گے کہ ڈیل کر رہا ہے، اور میرے پارٹی والے جو ہیں، ورکر جو ہیں، وہ ڈسہارٹن ہوں گے. تو اس لیے اب الیکشن تک آپ ملیں گے نہیں؟ الیکشن تک اب ہماری الیکشنئرنگ ہوگی. الیکشن مہم چلائیں. چاہے کتنے لوگ میرے کڈنیپ ہو جائیں، کوئی فرق نہیں پڑتا. آپ کے جو دوست ہیں وہ اغوا ہو رہے ہیں. پہلے ڈاکٹر عاصم جو ہے وہ ضمانت پہ رہا ہوئے، اس کے بعد آپ کے دوست یکے بعد دیگرے اغوا ہونے شروع ہو گئے. انہیں کون اغوا کر رہا ہے، حکومت یا ایجنسیاں؟ حکومت. میں تو حکومت سے بات کرتا ہوں. یعنی وفاقی حکومت. وفاقی وہ انٹیریئر منسٹر، میں تو ایف آئی آر ہی ان پہ کٹاؤں گا. ہو سکتا ہے وہ بے بس ہوں. بے بس ہیں تو چھوڑ دیں. بے بس ہیں تو چھوڑ دیں. آپ کے زمانے میں بھی ایجنسیاں منمانی کر لیتی تھی، اب بھی کرتی ہوں گی؟ نہیں، میرے زمانے میں منمانی ہوتی تھی کسی اور قسم کی. میری زمانے میں سویلینز کو نہیں ہاتھ لگایا جاتا تھا. میرے زمانے میں ہاں کوئی اس قسم کے جو نان پیٹریوٹک ایلیمنٹس ہوتے تھے ان کو ہاتھ لگایا. آپ سے پوچھ کے لگایا جاتا تھا؟ اٹ واز تھاٹ آف پالیسی. آپ کے جو دوست ہیں کیوں اغوا کیے جا رہے ہیں؟ کیا آپ سے کچھ منوانا چاہتے ہیں، آپ پہ کوئی دباؤ ڈالنا چاہتے ہیں، یا ان سے کوئی اعترافات کروانا چاہتے ہیں؟ سمجھتا ہوں ان کو ڈرانا چاہتے ہیں جو میرے طرف آ رہے ہیں. تو یہ کام پولیس کے ذریعے ہو رہا ہے یا کسی اور ایجنسی کے ذریعے؟ ہولیا تو ہر کوئی اس قسم کا بنا لیتے ہیں، اور سندھ پولیس کا تو نہیں ہے ہولیا، یہ تو کسی اور قسم کا ہے. سندھ حکومت اور وفاقی حکومت کے درمیان بھی بڑی چپکلش جاری ہے. اے ڈی خواجہ کا معاملہ ہو یا دیگر افسروں کی تعینات. اے ڈی خواجہ تو ایک پرسنالٹی ہے نا. سوال یہ ہے کہ فیڈریشن کا رائٹ ہے
या प्रोविंस का राइट है। हमारे नज़र में 18th अमेंडमेंट के बाद प्रोविंस का राइट है कि इसको हम रखें। इट वाज अ फॉर्मेलिटी कि हम फेडरेशन से उसकी कंसल्टेशन करें, नॉट अ राइट, इट इज़ अ फॉर्मेलिटी। वो फॉर्मेलिटी हमने पूरी की, उसमें जो हमने नाम सजेस्ट किए वो नहीं एक्सेप्ट कर रहे, तो हमने उस पर ऑब्जेक्शन किए। अब चूँकि एक सिविल लिटिगेशन में किसी ने भेजा हुआ है किसी को, किसने भेजा हुआ? जिसकी एडवांटेज है, पानी टूटता है जिसकी फसल को लगता है उसका कसूर होता है ना, तो जिसका एडवांटेज है, यानी मियां नवाज शरीफ का? नहीं, किसी और का जिसका एडवांटेज है, जो पॉलिटिकली खेलना चाहता है वहाँ। और कौन है? और तो कोई पार्टी नहीं है। उनके पीछे नीचे बहुत से लोग हैं जो उनके लिए उनके कारिंदे हैं, जो काम करते हैं। आपको भी पता है, मुझे भी पता है। एडी ख्वाजा से क्या इख्तलाफ है? वो तो बड़ा अच्छा अफसर है। नहीं तो दूसरे बुरे हैं क्या? आपने खुद लगाया था एडी ख्वाजा को। हाँ, तो मैं दूसरे भी बुरे नहीं हैं। 5 दफ़ा धरने में आपने आईजी इस्लामाबाद चेंज किया, कितनी दफ़ा लाहौर के आईजी चेंज हुए। 20 ग्रेड का अफसर बैठा हुआ है इस वक्त केपी में आईजी, तो क्यों सिंध हुकूमत अपना आईजी नहीं लगा सकती? इसके पीछे क्या राज है? आपके ख्याल में इसकी क्या वजह है? प्री पोल रेगिंग अभी से शुरू हो गई है। अब इससे ही शुरू है। तो क्या चाहते हैं कि पीपल्स पार्टी इस दफ़ा सिंध से सीटें ना ले? हमेशा कोशिश की है कि ना ले, कब कोशिश नहीं हुई। कहते हैं जी लाड़काना में आपने डेवलपमेंट नहीं की, शहर खुदे पड़े हैं। ये प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब हर रोज़ तकरीर करते हैं कि जी ये देखें इनके अपने हालात क्या हैं। क्यों हमें लाड़काना वाले वोट देते हैं? क्यों हमें सिंध वोट देता है? तो क्यों देते हैं वोट जब आप डेवलपमेंट नहीं कराते? तो किसने कराते हैं? आपको नज़र नहीं आती? मैं आपको भेज देता हूँ नहद लाड़काना की डेवलपमेंट पे जो हमने बनाई हुई है। फेसबुक पे तो तस्वीरें आती हैं, गड्ढे हैं, सड़कें टूटी वो हुई भी है, होती है ना। देखे ना, पूरा मैं आपको लाहौर में दिखा दूंगा कि बैल भी चढ़ रहे हैं। अगर आप बुराई देखने जाएंगे तो हर जगह नजर आ जाएगी। ये तो नहीं है कि पूरा लाहौर साफ है। अब भी मोची दरवाजे के नीचे जो आपको कचरा नजर आएगा, ये तो नहीं कि साफ हो जाएगा। 3 करोड़ अगर आबादी है कराची की, और उसमें ज़्यादातर पश्तून हैं, 40 लाख पश्तून हैं, तो आप मुझे समझाएं कि मैं कैसे कराची की डेवलपमेंट करूं, कैसे पानी पहुंचाऊं, कैसे रास्ते बनाऊं, किस तरह मैं उनके संभालूं। लेकिन जिम्मेदारी तो आपकी है ना, सिंध हुकूमत की जिम्मेदारी है। हाँ, जितना बजट होगा उसको डिवाइड अकॉर्डिंगली करूंगा ना। फेडरल गवर्नमेंट तो कहती है हमने बड़ी इमदाद दी है कराची के लिए। एक्सक्यूज मी, वो मेरी छोटी बेटी कहती है एक अल्फाज डा, कुछ नहीं दिया। मुझे तो नज़र नहीं आ रहा है। बजटेड अकाउंट्स होते हैं, बजटेड बुक्स आती हैं, आप उठा के देख लें कराची को कितना ने बजट दिया है। 70 साल की सिंध की, पाकिस्तान की हिस्ट्री में थर में पानी नहीं आया है। हमने थर में पानी पहुंचाया है। हमने थर में एयरपोर्ट बनाया है जिसका नाम माई बख्तावर होगा। वहाँ जो पावर प्लांट्स बन रहे हैं, ये कहते हैं कि हम लगा रहे हैं, फेडरल गवर्नमेंट नहीं लगा रही। 51% हमारा शहर है उसमें, सिंध का शहर है। सिंध गवर्नमेंट ने अपने पैसे डाले हैं। सिंध का शहर इस तरह नहीं है क्योंकि कोयला मेरा है तो शहर मेरा है, होना तो ऐसे चाहिए, मगर 51% हमने इन्वेस्टमेंट की है उसमें। तो फेडरल गवर्नमेंट की तो बातें ही बातें हैं। बतौर सदर पाकिस्तान आपने चीन के 9 दौरे किए, तो उन 9 दौरों में क्या बातचीत होती रही? पाकिस्तान, पाकिस्तान एंड पाकिस्तान। लेकिन उस वक्त कोई उसका अमली इजहार सामने नहीं आया। अमली इजहार तब आया जब मैंने उनके साथ सीपैक साइन किया। सीपैक आपने तो नहीं साइन किया जी। आइए मैं आपको दिखाता हूँ कि मैंने साइन किया या उन्होंने साइन किया। मैंने ये आपके लिए रखी हुई है।
वक्त इसका नाम कुछ और था। नहीं, हम तो इसको कह रहे थे बेसिकली ग्वादर पोर्ट ना। अगर ग्वादर पोर्ट नहीं है तो सी पैक क्या है? टीवी पर जो देखा उससे तो ऐसे लगता है कि गवादर पोर्ट का इफ्तिताह भी और उसका आगाज़ भी आपके दौर में हुआ, लेकिन सी पैक का तो क्रेडिट हमेशा मियाँ नवाज शरीफ और मियाँ शहबाज शरीफ लेते हैं। ये फिर कैसे मुमकिन हो गया? कि ये तो न्यूक्लियर का भी लेते हैं। आप देखें कि उस वक्त प्राइम मिनिस्टर तो थे ही नहीं, अभी तक उन्होंने ओथ लिया नहीं था। जब मैं साइन करता हूँ और प्राइम मिनिस्टर ऑफ चाइना के साथ, और वो नए नए प्राइम मिनिस्टर बनते हैं और वो आते हैं, और उनके साथ उनके प्रीवियस प्राइम मिनिस्टर के साथ मेरी ये 9 मुलाकातों में जो मैं जाता रहा, मिलता रहा, बात करता रहा, उनको कायल किया मैंने कि हाँ, आपके लिए भी बेहतर है, हमारे लिए भी बेहतर है कि ये वार्म वाटर्स का एक्सेस हो आपको। और उनको बात समझ आ रही उनको, तब उनने जाके आप बैंक पहला कब खुलता है उसकी अपडेट निकाल के देख लें, कराची में खुला है। करेंसी स्वैप कब होता है उसकी डेट निकाल के देख लें, हमारे दौर में होता है। तो अभी तो बहुत कुछ होना है, इतना होना है कि आप समझ नहीं सकते और आपको अंदाज़ा नहीं है। इनने उसका सही इस्तेमाल ही नहीं किया। इंतखाबी मुहिम में आप ये बात करेंगे बिलावल साहब और आप कि सी पैक का क्रेडिट पीपल्स पार्टी को जाता है? मैं चाइनीज़ फ्रेंडशिप, चाइनीज़ डेवलपमेंट, चाइना की फ्यूचर एक्सेस टू द वाटर पोर्ट, वार्म वाटर पोर्ट्स की बात करूँगा, जो बात करने वाली है, जो समझने वाली है। अगले इलेक्शन में आप कामयाब हो जाते हैं तो क्या आप दोबारा सदर बनेंगे? बिलावल भुट्टो को वजारत उज़्मा के लिए नामजद करेंगे? क्या पीपल्स पार्टी ने हिकमत अमली बनाई है? ये तो पीपल्स पार्टी के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप बीबी की वेल वहाँ लगी हुई है उसको देख लें और पढ़ लें, तो वो भी यही कहती हैं कि मैं पार्टी को एडवाइस करती हूँ कि मेरे नाम पे उसको चेयरमैन बनाया जाए। वहाँ पार्टी बैठती है और मैं पार्टी को एडवाइस करता हूँ कि मैं को चेयरमैन बनता हूँ, आप बिलावल को चेयरमैन बनाएं। और सब जो हमारी उस वक़्त की कोर कमेटी है वो बिलावल को चेयरमैन बनाती है। क्या आप दोबारा वजारत उज़्मा या सदारत के उम्मीदवार होंगे? पावर जहाँ है वहाँ के उम्मीदवार तो हर कोई हो सकता है। जहाँ पावर नहीं है उसका उम्मीदवार कौन होगा? सदर के उम्मीदवार नहीं होंगे? नहीं, सदर के उम्मीदवार पार्टी में से कोई हो सकते हैं। आप नहीं होंगे? मैं नहीं हूँगा। आप वज़ीर आज़म के उम्मीदवार होंगे या बिलावल भुट्टो? पार्टी डिसाइड करेगी, मैं नहीं डिसाइड करूँगा, चेयरमैन डिसाइड करेगा। लेकिन चेयरमैन साहब तो अब बतौर वज़ीर आज़म लोग इनको देखते हैं तो होना, देखना भी चाहिए। लेकिन कहते हैं आप इन्हें रोकते रहते हैं आगे बढ़ने से। थोड़ा सा ये आगे जाते हैं, एग्रेसिव होते हैं, जारहाना अंदाज इख्तियार करते हैं, आप पीछे खींच लेते हैं। शायद इनकी जान की फ़िक्र है आपको ज़्यादा? नहीं, जान की तो फिक्र ज़रूर है, मेरा बेटा है, मैं तो करूँगा जान की फिक्र हमेशा, मगर सियासत में नहीं रोकता। किस चीज़ से रोकते हैं इन्हें? जारहाना अंदाज से रोकते हैं? सिक्योरिटी रिस्क पे रोकता हूँ, सिर्फ गाड़ी से बाहर ना निकला कर, बस। और ये मानते नहीं हैं? ये मानते नहीं हैं। जरदारी साहब एक और बात आज वजाहत कर दें। आए रोज़ होता है आप बहुत अमीर हैं, पाकिस्तान के 10 बड़े अमीरों में हैं, और लंदन भी आपके घर हैं, फ्रांस भी घर हैं, अमेरिका में भी घर हैं। आप कितने अमीर हैं बता दें आज? हमारी प्रॉपर्टीज़ हैं जो हमने बहुत पहले ली हुई हैं, कराची में हैं। यहाँ आपसे दोस्त कहते हैं कि जी एक बैम्बिनो सिनेमा का मालिक था, बैम्बिनो चैम्बर्स था। बैम्बिनो चैम्बर 63 में खुलता है। चैम्बर 7 फ्लोर पे था, 7 स्टोरीज। सिर्फ मुझे याद है उस ज़माने में उसका जो 7th फ्लोर पे पेंट हाउस मेरी वालदा ने बनवाया था, वो 3.5 लाख का उस ज़माने में बना था जब 12,000 की करोला आती थी। कराची में 2 बिल्डिंगें थी, एक तिब्बत सेंटर, एक बैम्बिनो। तो अगर 50s में हमने कंस्ट्रक्शन स्टार्ट की, 59 में या हमने कंस्ट्रक्शन स्टार्ट की और 63 में आके हमने
कंप्लीट किया तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का करम था ना। जब मेरी बीवी से शादी होती है तो जिस घर में वलीमा हम करते हैं वो मेरा अपना घर था ना, वो 7,000 गज पे था, जहाँ आज मैं बिल्डिंग बना रहा हूँ। वो बिल्डिंग मेरा ख्याल है 8 मंजिला बन चुकी है और उसने 14 मंजिल जाना है, जो कि 7 मंजिल ज़मीन के नीचे भी है। ज़मींदारी मेरी अपनी है। तो ज़मींदारी की खुद निगरानी करते हैं? एब्सेंटली लैंडलॉर्ड हूँ। और बच्चों की जो ज़मीन है उसको कौन लुक आफ्टर करता है? लाड़काना में उनका भी मैनेजर है, वो लुक आफ्टर करता है। वो भुट्टो स्टेट है जो बीबी से इनहेरिट की है, भुट्टो साहब से इनहेरिट की है, उसमें मेरा 1 एकड़ है। आपको विरसे में मिला है बीबी की तरफ से? बीबी की जो विल थी वो इस्लामिक विल थी, तो उसमें मुझे जो इस्लामी कानून के हिसाब से मिलता है वो मिला। तो जो मुझे मिला वो मैंने बेटियों को दे दिया ताकि बेटे जितना हो जाए, मगर 1 एकड़ मैंने लाड़काना में अपने नाम पे रखा कि मैं उसकी विल को तस्लीम भी करूं और एक्नॉलेज भी करूं। आपकी जो आमदन है उसका ज़्यादातर हिस्सा ज़मींदारी से आता है या बिजनेस से? ज़मींदारी से तो आता है हर साल का खर्चा, समझे आप, और बिजनेसों से आता है जब प्रोजेक्ट्स कंप्लीट होते हैं। कंस्ट्रक्शन का बिजनेस करते हैं? कंस्ट्रक्शन का बिजनेस करते हैं। ज़मीनें मेरी है, कंस्ट्रक्शन तो कोई और करता है। आप अपनी ज़मीन देते हैं और उसके ऊपर कंस्ट्रक्शन कोई और करता है, और आप उसके साथ शेयर करते हैं? शेयर करता है। सवाल तेरे बदमाश क्यों ने किए ऐसे जालिम सवाल करता है। Thank you, sir. So kind of you. Very kind. Bilawal Saab, thank you very much.